Good evening, everyone. Sorry for being late because of some technical issue. Our guest speaker was not able to join us. Now he has joined us. I, Dr. Meenakshi, Ayush Medical Officer Bareilly, with my co-host Dr. Ranjan, Ayush Medical Officer Bareilly, and Dr. Pratima Bhurian, Ayush Medical Officer from Lucknow, welcome you all on the platform of Ayurvedic Medical Officers Education Forum. Before we move on, I extend my warm welcome to our guest speaker, Professor Dr. V.K. Agnihotri. He is HOD, Swasthit and Yoga, Doom Institute of Medical Sciences, Dehradun, Uttarakhand. Dr. V.K. Agnihotri is our eminent speaker for today's webinar, daily and seasonal routine to keep oneself healthy in present scenario. Our special thanks to our sponsors, Maliat Foundation, NGO partner, and Virveda, our media partner. So there is a brief introduction of Sir. I find immense pleasure in introducing our honorable speaker, Dr. Vineet Kumar Agnihotri. His professional education is as follows. He has done BMS Ayurvedacharya in 1978 from Rishikul State Ayurvedic PG Medical College and Hospital, Haridwar. Diploma in Yoga in 1982 from Yog Sadhana Kendra BHU Varanasi UP. MD Ayurved in 1983 in Swasthit and Yoga. Department of Basic Principle, Institute of Medical Sciences, BHU Varanasi. He has done PhD in Alternative Medicine in 1995, Indian Board of Alternative Medicine, Calcutta, West Bengal, the Open International University for Complementary Medicines. His professional uh, experiences are as follows. He worked as honorary demonstrator for 2 years in Department of Basic Principle, Institute of Medical Sciences, BHU Varanasi, and as a demonstrator for 1 year in Varanasi. He also worked as assistant professor Sanskrit for almost 1 year in Government Ayurvedic College, Piprola, Kangra, Himachal Pradesh. He also worked as Ayurvedic Chikitsadhikari for 4 years almost in Government Ayurvedic Hospital, Dhanora and Jarianpur, Shahjahanpur, UP. So he also worked as lecturer Sanskrit for 15 years at Rishikul State Ayurvedic College, Haridwar. At that time, it was in UP. Reader and professor, associate professor for 9 years at Rishikul State PG Ayurvedic College and Hospital, UK, and professor and reader and associate professor at Haridwar. He worked as a professor since 2014 to 2016 at Rishikul campus, Uttarakhand Ayurvedic University in Haridwar. So also worked as visiting professor for 17 years. And I think almost he is continuing also in World University Benson, Arizona, USA. So he has an experience of almost 30 years in teaching, and his field of specializations are PG in Swasthit and Yoga and Ayurvedic water disinfectants. He participated in many international and national seminars since 1982 to 2018 at BHU Varanasi, Lucknow, Haridwar, AIIMS Delhi, Calcutta, Peprola, Kangra, and Bangkok, Thailand, and Ujjain, Madhya Pradesh. This was all about Dr. V.K. Agnihotri, sir. He was also my mentor. Over to you, Dr. Ranjan. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मीनाक्षी। आज हमें बड़ा ही हर्ष का अनुभव हो रहा है, गौरव का अनुभव हो रहा है कि जिन्होंने हमें पढ़ाया है, जिन्होंने हमें आयुर्वेद की शिक्षा दी है, जिन्होंने मुझे मतलब हम तीनों के ही वो हमारे गुरु रहे हैं और आयुर्वेद में अपना उत्थान कैसे करना है, आयुर्वेद के माध्यम से समाज की सेवा कैसे करनी है, आयुर्वेद के माध्यम से आतुरों की सेवा कैसे करनी है, जिन्होंने हमें सिखाया है और जिनके आशीर्वाद से, जिनके टीचिंग से हम लोग इस काबिल बन सके हैं कि आज एक चिकित्साधिकारी जैसे पद पर समाज सेवा कर रहे हैं।
तो ये बड़े ही हमें गौरव की बात है, आज पुनः उनको हम लोग सुनेंगे। मुझे हम डॉक्टर वी के अग्निहोत्री उन गुरुओं में से हैं जिनको वास्तव में गुरु की पदवी दी जा सकती है। उन्होंने हमें सिखाया है कि नजर के सामने रहने की आरज़ू आए, नजर के सामने रहने की आरज़ू आए, खुद अपने वादे निभाने की जुस्तजू आए, और ना होगा कुछ भी खुद पे इत्र छिड़कने से विशद। ना होगा कुछ भी खुद पे इत्र छिड़कने से विशद, करो वो काम एक किरदार से खुशबू आए। तो आज हम उनके ही दिशा निर्देश पर, उनके ही आशीर्वचनों के कारण से आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और 4 पंक्तियों से मैं डॉक्टर वी के अग्निहोत्री जी का आह्वान करूंगा, क्योंकि विलंब हो गया है काफी। कि जीने की तमन्ना है तो बिखरा दो फलक पर, जीने की तमन्ना है तो बिखरा दो फलक पर, पत्थर भी तुम्हें देख के परवाज सीख ले, और मरना है अगर तुमको तो कुछ इस तरह मरो, दुनिया तुम्ही से मरने का अंदाज से। मैं आह्वान करता हूं डॉक्टर वी के अग्निहोत्री जी का कि आज वो अपने पुराने जैसे कि हम लोग पिछले 5 वर्ष उनके उसमें रहे हैं, उनकी गुरुता में, आज उसका पुनः अवलोकन करें। मैं डॉक्टर वी के अग्निहोत्री जी का आह्वान करता हूं। धन्यवाद। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज बहुत ही अद्भुत संयोग है कि जिस प्लेटफॉर्म पर हम अपने शब्दों को यहाँ पर बांटेंगे, वो तीनों ही हस्तियां इस समय हमारे सामने विराजमान हैं, और वो सब मेरी ऋषिकुल में छात्र छात्राएं रही हैं। तो उन्होंने तो अपने मन के विचार कह दिए, हम सुन के ही बहुत ही गदगद हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है किसी भी गुरु के लिए, किसी भी टीचर के लिए, जब वो अपने छात्र को योग्य और योग्यतम होके एक समाज के व्यवस्थित पद पर स्थित देखता है, तो उसकी खुशी बहुत ही बढ़ जाती है। और इनकी सामर्थ्य, इनकी वाणी पर इनका जो विशेष कृपा है माँ सरस्वती की रंजन जी के ऊपर, तो मेरा ये बड़ा सौभाग्य रहा इनके साथ। पिछले दिनों हम लोग ताशकंद की यात्रा पर भी रहे, तो सुखद अनुभूतियां रही हैं। आज शायद उसी सब का ये प्रतिफल है कि हम लोग एक बार आमने सामने लाइव आ गए हैं, और अपने विषय वस्तु के बारे में जितने की डॉक्टर मीनाक्षी ने बहुत ज्यादा ही वर्णन कर दिया। हालांकि वो चर्चा सभी सही था, जहाँ तक मेरा कलेक्शन है लाइफ का, मैंने छोटी छोटी जगह से लेकर बड़ी तक, वो सब बढ़िया है। लेकिन दुख तो ये है कि समय ससीम है और विषय असीम है, तो उसमें हम इस समय के साथ कितना न्याय कर पाएंगे, ये समापन पर ही पता लगेगा। तो बिना किसी और औपचारिकता के, जो कलेक्शन जब से हमें ये इनविटेशन मिला है, हमारा बड़ा रात दिन आप जानते हैं, हमारी प्रकृति को जानते हैं कि मिनट टू मिनट कहीं भी खड़े हैं, अखबार भी पढ़ रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि क्या करना है, कैसे हमें कंपाइल करना है, क्या बोलना है। तो उसकी हम शुरुआत करते हैं। टॉपिक दिया गया हमको है कि दिनचर्या और ऋतुचर्या की क्या रूटीन होनी चाहिए। यहाँ तक तो बढ़िया था, लेकिन वो जो आ गया कि वर्तमान सिनेरियो में एक इंडिविजुअल को कैसे मैनेज करना चाहिए, यहीं पे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है। आप देखें कैसे आ गई, वो आपको बताते हैं। टॉपिक आपने दिया ना कि डेली एंड सीजनल रूटीन टू कीप वन सेल्फ हेल्दी इन प्रेजेंट सिनेरियो। तो अभी तक हम लोग जो छात्र थे और अध्येता रहे, अनुसंधान करता रहे और अध्यापक रहे, तो हमारा संस्कृत विषय तो स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण में था कि हाउ टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द हेल्दी पर्सन। तो वहां पर जो अब टेक्सचुअल है, जो शास्त्रोक्त हमारा दिनचर्या और ऋतुचर्या की बात कही गई है, हमें उससे बहुत आगे जाना पड़ेगा। इसलिए हम एग्जैक्टली आज हमारे मेडिकल ऑफिसर सामने हैं, सभी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, अच्छा अनुभव है, इसमें वो चिकित्सा कार्य कर रहे हैं। तो वो जो लिटरेरी कॉन्सेप्ट है, जो चाहे वो मनुस्मृति से लेके चले, रामायण से लेके चले, महाभारत से लेके चले, सनातन क्रम में चला आ रहा है। हर व्यक्ति की अपनी एक दिनचर्या होती है, लेकिन दिनचर्या स्वस्थ के संबंध में, स्वास्थ्य है हमारे पास, कैसे मेंटेन करें, ये एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था जो आज भी हमारे पास सिलेबस में है, और उसमें भी संस्कृत में MD PhD सब हो रहा है। लेकिन आज स्थिति क्या है, हम इस दिनचर्या को 4 कैटेगरी में, हमारे जो
जो वॉलंटियर्स हैं उनके लिए बांटेंगे। अब आप देखिए, क्योंकि आज मेडिकल ऑफिसर से बात कर रहे हैं तो हमारे पास वो खुद ही वर्तमान सिनेरियो में देखें तो उस कोविड-19 के कांटेक्ट में रहे, उनके मरीजों के कांटेक्ट में रहे और सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसलिए हमने क्या कैटेगराइज किया है, एक दिनचर्या। अच्छा, एक चीज और, क्योंकि ये लास्ट ईयर चाइना में दिसंबर को प्रेसिपिटेट हुआ, इंडिया में पहला केस भी 31 दिसंबर 19 में आया, और उसके बाद पूरा एक बार हमारा साल घूम गया, यानी कि वो दिनचर्या से साथ दिनचर्या का भी रोल बनी गया। अन्यथा 15-20 दिन के लिए कोई होता, हैजा आया तो ठीक है भाई 15 दिन में निपट जाएगा, जुकाम हुआ तो चलो जल्दी से ठीक हो जाएगा। इसलिए दिनचर्या के साथ साथ दिनचर्या का भी उतना ही बड़ा रोल हो गया है। हम शुरू करते हैं, एक दिनचर्या स्वस्थ व्यक्ति है, स्वास्थ्य के संबंध में उसे कैसे दिनचर्या मेंटेन करनी है, और वो कहीं से भी कोविड से संपर्क उसका नहीं है, बिल्कुल हेल्दी है, वो कैसे अपने को इस सिनेरियो में हेल्दी रख सके। दूसरा, वो जो किसी भी तरीके से कोविड से संबंधित नहीं है लेकिन वो कोमार्बिड है, वो ब्लड प्रेशर से सफर करता है, या उसको डायबिटीज है, उसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, ओबेसिटी है, कोई चीज है, तो एक उसके लिए दिनचर्या रहेगी। फिर तीसरी चीज दिनचर्या बनेगी उन लोगों के लिए जो कोविड-19 के साथ में क्या है, वो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है लेकिन एसिम्प्टोमेटिक है, एक उनके लिए दिनचर्या बननी पड़ेगी। एक वे जो कि 100% कोविड पॉजिटिव आ गया है और हॉस्पिटलाइज है, अंडर ट्रीटमेंट है, अब वो आईसीयू में है या वो अभी उनको केवल क्वारंटाइन किया गया है। उसके बाद चौथा आ जाएगा वो जो कि अपनी ठीक होके रिपोर्ट नेगेटिव ला चुके हैं, अब वो कन्वल्सेंस में, उनकी दिनचर्या क्या होगी। और पांचवी कैटेगरी वो होगी कि इन सबके जो अटेंडेंट है, हेल्दी से लेके और पेशेंट के कांटेक्ट में आने वाले, उन सबके बीच में क्या है। तो हमने इसमें बड़ा मंथन किया कि दिनचर्या कह के तो बहुत छोटी बात हुई, वो तो बुकिश हो गई, उससे तो आप लोग बहुत आगे निकल गए। जब प्रेजेंट सिनेरियो की बात करेंगे तो हर इंडिविजुअल के लिए, और इस सब के अलावा दिनचर्या उनकी भी होगी। आप देखिए इतना बड़ा जो काम बीता है हमारे देश में, विश्व में बल्कि कहना चाहिए, दिनचर्या तो उस व्यक्ति की भी होगी जो हॉस्पिटल में अटेंडेंट स्टाफ का काम कर रहा है, जो ग्रेवयार्ड में जिसने काम किया है, जिसने लास्ट रिचुअल्स के लिए, जिसने की फ्यूनरल में काम किया है, जो कॉबलर था, जो दूसरे तीसरे चौथे, माने अब हम प्रोफेशन बेस्ड भी दिनचर्या की कल्पना करेंगे। तो वो हाउ टू मेंटेन देयर हेल्थ irrespective of their possibilities of the contact with the special reference to the present pandemic scenario, है ना। तो इतना ज्यादा मंथन करेंगे तब आपको याद में आएगा कि नटशेल में हमारे पास है क्या, और उस सब के चीज में हम उन लोगों की बात करेंगे जो SII में काम करते रहे, हमारे जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में काम किया जिन्होंने, हमारे ICMR वाले लोग, जिन्हें जो काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च वाले लोगों ने काम किया। हमें ये देखना है कि हर वो व्यक्ति जो किसी ना किसी प्रोफेशन से जुड़ा है, एक उसकी भी रात होती थी, वो डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी थे वो 15-15 दिन ड्यूटी कर रहे थे, फिर होटल्स में रहते थे, परिवार से नहीं कॉन्टेक्ट करते थे कि उनको ना स्प्रेड हो जाए, उनका क्वारंटीन ये सब रहा। तो इस दिनचर्या को इस रूप में हमें फैलाव लेना होगा। अब हम बात करते हैं इस रूप में कि मान लिए थोड़ी देर के लिए हमारी डिजीज आई वर्ल्ड में, तो किसी भी डिजीज की कंट्रोल की जब बात करते हैं, दिनचर्या तो उसका एक हमारे लिए टूल है। अगर हम कहें एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए उसको स्वस्थ स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या है, तब तो आप जानते हैं कि ऑब्जर्वेंस ऑफ दिनचर्या, डेली रिजीम, नाइट रिजीम, इवनिंग रिजीम, सीजनल रिजीम, इसके अलावा सद्व्रत पालन, वेग विधारण और हमारा त्रय उपस्तंभ, ये हमारी इसी दिनचर्या के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा हम अपने रॉयल प्रोफेशन में अपना काम करते हैं और अपना रेस्ट करते हैं। तो दिनचर्या या दिनचर्या का हमें फायदा क्या है, हमारा अल्टीमेट एम क्या है दिनचर्या पालन करने का। दिनचर्या में बताए गए जो नियम है, रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो डूज एंड डोंट्स हैं, उनको फॉलो करने का फायदा क्या है, इनके पीछे अल्टीमेट एम क्या है, इसको भी यहीं पे पकड़ के रखना होगा। तो जैसे कि चर धातु की बात हुई, जो भी हमारा आचरण होगा, जो मेरी एक्टिविटीज होंगी और जो कुछ हम खाना खाएंगे, जो भी हमारे आहार होगा, जो हमारी डाइट होगी, एज पर द डे, एज पर नाइट, एज पर द सीजनल वेरिएशंस, उन सब के द्वारा हमें पहुंचना कहाँ पर, व्हाट इज द एम बिहाइंड इट, ये हमको समझना पड़ेगा। और इस पर हम लाइट ले जाएंगे। इस पूरे दिनचर्या और दिनचर्या के ऑब्जर्वेंस से हमको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी होगी। दिस दिनचर्या, दिस ऑब्जर्वेंस ऑफ दिनचर्या लीड्स टू ए हेल्दी लाइफ इन द टर्म्स ऑफ द हायर ग्रेड ऑफ इम्यूनिटी। और मॉडर्न पैरामीटर्स पे लेकर जाएं तो आप जानते हैं टी सेल्स, CD4 सेल्स या हमारे ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहाँ पर हैं, उनका स्टेटस क्या है, इस सब के साथ में हमारी साउंड स्लीप कैसी है,
हमारी ब्रेन वेव का जो टेस्टिंग हो तो कैसे आती है, इन सब पैरामीटर्स को भी एक साथ लेके चलना पड़ेगा। तब आप देखिए कि हमारी दिनचर्या की जो छोटे छोटे एक्टिविटीज थी वो कहाँ जाके जाती है। हम जब बात करेंगे कि किसी भी डिजीज को, जब हम कंट्रोल की बात करें कि डिजीज की कंट्रोल से क्या बात आई थी, जब हमने बहुत पहले पढ़ाया होगा कि स्पेशली कंट्रोल ऑफ डिजीज इन स्पेशल कैटेगराइजेशन ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज। तो क्या होता है, सबसे पहले नोटिफिकेशन, देन आइसोलेशन, देन क्वारंटीन, देन डिसइंफेक्शन, एंड द फिफ्थ वन वाज द इम्यूनाइजेशन। अभी ये देखिए कि नोटिफिकेशन की जहां तक बात होती है, ये पेंडेमिक डिक्लेयर हो गया। जब तक पेंडेमिक डिक्लेयर नहीं हुआ था या शुरुआत हुई थी इंडिया वगैरह, कुछ नहीं, बाहर ही बाहर हो जाएगा, क्या होगा, इंडिया तो सफर करेगा, कैसा कुछ एक संभावना या एक रहते थे। अब जब पेंडेमिक डिक्लेयर हो गया तो मतलब नोटिफिकेशन कहीं कोई कमी रही नहीं, उसमें जो भी रोल WHO ने अदा करना था उसने कर दिया, और यूएन ने भी, या पूरे वर्ल्ड वाइड हो गया। इसके बाद आती थी आइसोलेशन, तो जो प्रैक्टिकली कभी पढ़े थे हम लोगों ने, आइसोलेट कर दो भाई, कोई दिक्कत है, उसको आइसोलेट कर दिया तो वो दूसरे तक उसका इन्फेक्शन नहीं पहुंचेगा। फिर बात आई क्वारंटीन की, क्वारंटीन इंटरनल क्वारंटीन और एक्सटर्नल क्वारंटीन, मतलब अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ से ना मिलने पाए, स्वस्थ व्यक्ति अस्वस्थ से ना मिल पाए, दोनों ही कैटेगरीज का हम लोगों ने प्रैक्टिकली वर्ल्ड वाइड इसमें अच्छे से देखा। जिन्होंने क्वारंटीन की स्पेलिंग भी नहीं जानते होंगे, उन्होंने क्वारंटीन को प्रैक्टिकली देखा और हर लेवल पर देखा, सिवाय उस तबलीगी जमात से लेके, या जो बेचारे हमारे लेबर क्लास जो पंजाब अमृतसर से लेके और बिहार तक पहुंचे, या महाराष्ट्र वाले बिहार तक पहुंचे, उन्होंने तो जो भी था वो, जितनी भी हमारी WHO के द्वारा इश्यू की गई जो एडवाइजरी थी, या हमारा आयुष डिपार्टमेंट ने बहुत बाद में इनको मौका मिला तब काम शुरू किया, उसके बाद सारी डिपेंडेंसी हमारे ऊपर ही आ गई, आयुष वालों ने ही लीड लिया, तो वहां पर भी हमने क्वारंटीन में अच्छे से देख लिया, हेल्दी का भी अनहेल्दी की। अब बात आती है डिसइंफेक्शन की, तो कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन में डिसइंफेक्शन का सबसे बड़ा रोल रहा, जिसमें कि 20 सेकंड तक हाथ धोने वाली बात रखी गई, मास्क लगाने बात रखी गई, फिर जो है 6 फीट की डिस्टेंस का रखी गई, सोशल डिस्टेंसिंग वाली बात हुई। हम इन्फेक्टेड है या नहीं है, हम इन्फेक्टेड के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, हमें सोशली लॉकडाउन के बाद भी अलाउ है कि नहीं है, उसके लिए थर्मल स्क्रीनिंग वाली बात आ गई। हम लोगों ने फेस शील्ड की बात कर ली। अब जहां पर कुछ भी नहीं था, सिंपल सर्जिकल कपड़े वाले मास्क से लेके PPE किट तक भारत ने जो डेवलपमेंट किया और अपनी बचाव किया और विश्व को सपोर्ट किया, वो सब चीजें वन बाई वन होती चलेंगी, और डिसइंफेक्शन वाला भी हम लोगों ने पॉइंट कवर कर लिया। अब बात आती थी वैक्सीनेशन की या इम्यूनाइजेशन की। अब 16 दिसंबर से पहले, आज तो बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम इसमें भी लीड कर गए, और पिछले रात के आंकड़े जो हैं कि 48 लाख को लग चुका है, वैक्सीनेशन हो चुका है फर्स्ट राउंड में, और कल से शायद सेकंड राउंड मंडे शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल 97.13% की हम लोगों ने रिकवरी रेट ले लिया है। डेथ की पोजीशन जो गई है, एक बार अभी पिछले 24 घंटे में एक बार पर्सन उससे बात है, 87 ओवरऑल डेथ टॉल रही है इंडिया में, बाकी अभी तो 127 है, कितना हो गया। लेकिन वो 16 दिसंबर से पहले की बात देखें तो हम लोग बहुत ही ज्यादा हैंडीकैप थे कि हम वैक्सीन तो है नहीं, फिर इम्यूनाइजेशन कैसे करें। But here comes the role of Ayurvedic and concept of Ayurveda. Total theory of Ayurveda is now giving the guidelines to not only every citizen of India, but to world. It depends that who accepted it earlier got the benefit of it. नहीं तो फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के चक्कर में पड़े रहे, वो भी उन्होंने माने एक संभावना के तौर पर इस्तेमाल किया, जबकि कोई इस्टेब्लिश्ड उसके फैक्ट्स नहीं थे। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर चाहे इंडिया टीवी का आप समझिए कि रामदेव जी का पूरा 757 से 757 से 847 तक का एक 40 मिनट का रहा, अथवा जो पहले से नॉलेज रखते थे कि अगर हमें ठीक रहना है तो हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें प्राणायाम करना, वो सब लीड ले गया। इस सब के अलावा कि चूंकि एक बहुत चीजें इसमें हम ही नहीं, वर्ल्ड की जितने भी क्लॉस थे, जो शोधार्थी रहे हैं, जिनके पास संभावना है, उन्होंने सब वर्क किया और ज्योतिष ने बहुत आगे निकाला। और तो उस हिसाब से ये देखा कि केवल काढ़ा या केवल पर्टिकुलर चीज की बात नहीं, इसको हम कैसे पकड़ें। एक अपने एक्स जो डायरेक्टर साहब थे एम्स दिल्ली के, और दूसरे बाली साहब जो ICMR को रिप्रेजेंट करते थे और हेल्थ सेक्रेटरी आते, अक्सर जो डिस्कशन आता, जो बात आती थी कि ये जो कोरोना वायरस, जिसको नोवेल कोरोना वायरस 19 डिक्लेयर किया गया, तो वो करेक्टरलेस है। बड़ा टिपिकल शब्द बोला, इसका कोई करेक्टर नहीं है, ये कुछ पकड़ ले मारा, फिर इसमें म्यूटेशन होता है, फिर कुछ और करेक्टर बदल जाता है। नतीजा क्या है, और आज भी आप देख लीजिए सेकंड थर्ड जो स्ट्रेन से आए हैं, इसने फिर से एक न्यूसेंस क्रिएट कर दिया है अमेरिका में, इंग्लैंड में, ब्राजील में। तो ये अपने में समस्या है, तो इसके करेक्टर को पकड़े, स्टडी करें, इसकी
आउटर लेयर में जो प्रोटीन्स जो बॉडी में आने के बाद अगर रिएक्ट करता है तो वो हैजार्डस हो जाता है। इस नया वाला जो सेकंड वाला स्ट्रेन आया उसने तो हद ही कर दी, 30 सेकंड में ये प्रॉस्परस हो जाता है और किड्स पे ज्यादा इफेक्ट कर रहा था। तो इसलिए प्रोटेक्टिव मेजर स्वास्थ्य का या हमारी प्रिवेंटिव मेडिसिन का रिस्पॉन्स दिनचर्या के कॉन्सेप्ट में क्या आया कि हम अपने को हेल्दी जो पहले रखते चले आए थे, जो हेल्दी पर्सन हेल्दी रहने के तौर तरीके अपनाता था आयुर्वेदोक्त में, उसको फॉलो करें। और दूसरे जो हमने कैटेगरीज गिनाई है उसमें एज पर द पॉसिबिलिटी, एज पर द नीड एंड एज पर द एबिलिटी, किसको कितनी सक्षमता है वो उतना कर ले जाएगा तो भी ठीक रहेगा। उसमें यही था कि चूंकि ये मॉइस्चर से इसको कल्टीवेशन में आसानी होती है, स्प्रेड होने में आसानी होती है, और मेन इसकी जो सीट बनाई गई वो बताएगी थ्रोट या कंठ, और उसके बाद फिर इसका सीधा ये पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट रहता था, लंग्स से रहता था। तो ज्योतिषियों ने इस चीज पर बहुत अच्छा वर्क किया और मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन भी हम देखते रहे कि इसको इन्होंने कहा कि केतु की दशा में इसने काम किया है। और केतु क्यों? क्योंकि इसमें हेड नहीं है, तो जिसमें हेड नहीं है तो जिस एंटिटी में हेड नहीं उसको आप कैसे पहचानेंगे? यही वजह रही कि कोविड-19 को पहचानने में मुश्किल हुई कि हम जिसका चेहरा है उसको आप आसानी पहचान सकते। इसलिए जब तक केतु की दशा चली, महादशा चली, तब तक इसने हैजार्डस इफेक्ट पूरी मासिस होती है, वर्ल्ड वाइड इसका इफेक्ट है। इसीलिए ये टेम्परेचर का भी फर्क नहीं पड़ा। लो टेम्परेचर कंट्रीज में लाइक यूएसए वगैरह में या इंडिया गर्म देश था इसमें उसका वो नहीं है। जब वो पीरियड खत्म हुआ तभी कुछ रिकवरी की संभावनाएं बनी है। तो इसमें उन्होंने मान के चले हैं कि आयुष डिपार्टमेंट ने लीड लिया और उसके बाद ये बात रखी कि हमारे श्रीपाद नाइक जी जो ईश्वर उनको जल्दी स्वस्थ करे, तो उनकी गाइडेंस और कोटोचा साहब की गाइडेंस में और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का तो सारा रही, जो भी पीछे से फीडबैक मिला उसको उन्होंने अपने शब्दों में बार बार देश को एड्रेस करके ये सामने लाई कि हम स्वस्थ व्यक्ति का कैसे लीड लेवा पाए, कैसे स्वस्थ व्यक्ति का जे छोटी छोटी चीजें बताई, मास्क रोक लिया। अब हमारा रोल क्या था कि हमने पहली चीज तो यह है कि कोविड वालों पर विशेष ध्यान देना था। घर के अंदर कर दिया तो हम इन्फेक्टेड से कांटेक्ट में नहीं आएंगे। यही कहा, ये बड़ा स्वाभिमानी है, वायरस अपने आप आपके घर पे चल के नहीं आएगा यदि आप घर से बाहर नहीं जाएंगे, चाहे वो सब्जी वाले हुए दूसरे तीसरे। हमारी पूरी बात क्योंकि कोविड पे लेके चल रही प्रेजेंट सिनेरियो में, लेकिन हमारा फिर रोल वही आता है कि हमने कैसे किया, घर के अंदर रखा, समय से हाथ धोए अच्छे से। अब बात आई कि हमने काढ़ा पिया और काढ़े में लोगों ने इस कदर इन्वॉल्वमेंट कर लिया, जो चाहे इंग्रेडिएंट डाल दिया ये सोच के कि ये भी डालने तो आयुर्वेदिक के फायदे करेगा, लेकिन नहीं, सिर्फ दालचीनी, तुलसी या हमारा ये जो वासा था ये इसको लेके चलेंगे। मेन चीज से दालचीनी, जिससे कि हमारा जो ब्लड जो होता है डायल्यूट होता रहा, तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन में आसानी रही। और अभी डिस्निया ना हो तो तुलसी ले लिया उन्होंने और चीजें डालनी। उनके अलावा किसी ने त्रिकट भी डाल लिया, सौंठ मिर्च पीपल डाल दिया। मई जून में सौंठ मिर्च और पीपल त्रिकट डालने का नतीजा क्या निकला कि लोगों को रिएक्शन हो गई, किसी को हेमराइड्स हो गई, किसी को एसिडिटी होने लगी, पिंपल्स निकल आए। और हमारे प्रोफेसर जोशी जी को, उत्तराखंड के जो विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के बताना पड़ा कि इसमें ये इस कारण से हुआ, इसलिए इसको डाइल्यूट करो, इसको हल्का करो, इसके इंग्रेडिएंट वो मत इस्तेमाल करो जो की जरूरत नहीं है। इस तरीके से थोड़ा माइल्ड टाइप बनाया, स्पेशली जैसे मार्च के बाद में मई जून भर ये चला, धीरे धीरे अब तो चीजें बदल गई, नवंबर के बाद से चीजें चेंज हो गई, कंट्रोल में भी आ गया। तो एक तो काढ़े पे बात रखी गई, सैनिटेशन की बात हो ही गई, और इस सब के बात आई विशेष रूप से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे हार्ट को एक्टिविटी सी रखने के लिए और लंग्स के लिए। तो ये 3-4 चीजों पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें कि एक्सरसाइज की बात आई या योगासन की बात आई। सामान्य रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति जो आसन कर सके वो उनके लिए अच्छा था, और हेल्दी डाइट ले। और सबसे बड़ी चीज है कि प्राणायाम पर विशेष ध्यान दिया गया। प्राणायाम में भी बहुत ज्यादा नहीं, बहुत स्ट्रेनुअस नहीं, सिर्फ और सिर्फ अगर हमने भस्त्रिका कर लिया अवधि के हिसाब से कि हम 5 मिनट कर लें, फिर रेस्ट कर लें, फिर 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लें, फिर 5 मिनट कर लें, ऐसे एक पैकेज लिया 30-35 मिनट का। साथ साथ हमने कुछ जो कोमॉर्बिड वाले लोग जो थे, मधुमेह वगैरह वाले, उनके लिए मंडूकासन वगैरह बता दिया, तो उनको इसमें हेल्प मिल गई। और कुल मिला के हमने ये पाया कि अगर हमने इस चीज को रूटीन में ले लिया तो न तो वजन बढ़ने पाया, और ना हमने कोई ऐसी एक हमेशा बैठे रहने वाली स्थिति थी कि सीडेंटरी पोस्चर में रहेंगे तो हमें दिक्कत है, वो भी नहीं। घर में टेरेस ऊपर जाके या घर बाहर नीचे कहीं भी घर के अंदर ही अंदर ऐसी व्यवस्था किया कि हमें व्यायाम का जरूर इंस्पेक्शन रखा कि किसी तरीके से हम अपने
दिनचर्या में अपने पूरे 24 आवर्स के लिए जो हमारा अवेकनिंग टाइम रहेगा, जो हमारा वो काल है जिसमें हम जगे हुए हैं, उस परिस्थिति में अगर हमने अपने को बाय इंटेंशन हमने प्रयास करके दिनचर्या के विशेष महत्वपूर्ण अंग जो हम लोग बताते रहे हैं, भाई केवल मुख प्रक्षालन हो गया या अपना गले की सफाई हो गई, गार्गल्स, गंटूस, कवल हो गया, लेकिन जो एक्सरसाइज वाला पान था कि व्यायाम वाला काम जो था उससे हमें बल और स्थिरता दोनों प्राप्त होती रही। इसलिए व्यायाम को चाहे व्यायाम वाले लोग करें, जिम भी नहीं हो जा पाए तो अच्छा है आसन भी कर लें। आसन में सूर्य नमस्कार सबसे बढ़िया था, अपने आप कंप्लीट कॉम्पैक्ट ऑफ 12 आसनास है। इसमें हमारे गर्दन के, सिर के, मेरुदंड के, कमर के, है ना, घुटनों के और अंकल ज्वाइंट के, नी ज्वाइंट के सारे ही मूवमेंट अच्छे से हो जाते हैं। ये स्मॉल ज्वाइंट्स का भी मूवमेंट रहेगा इसमें और होल बॉडी मूवमेंट रहता है। तो सूर्य नमस्कार अपने में एक बहुत बड़ा एसेट है। अगर इसको ऑब्जर्व किया गया, लोगों ने किया है, बड़े अच्छे रिजल्ट्स रहे। और इस सब के अलावा जब डाइट की बात आती है, इतना तक करेंगे तो भूख लगेगी। डाइट की रिजीम बहुत अच्छी हो गई इस बार। देखिए गली में पीठ बाजार लगने बंद हो गए, अमेज़न खत्म हो गया, ऑनलाइन सप्लाई बंद हो गई, फिर भी जिनको पास मिलके थोड़ा व्यवस्था करने में समय लगा, उसके बाद तो आप देखिए जो पास मिलने के बाद सब्जी बेचने वाले आ गए, दूसरे लोग फ्रूट्स वाले आते रहे, तो उससे आपने अच्छे सैनिटाइज किया, बाहर बाल्टी में पानी में रख के रख दिया। ये भी एक दिनचर्या का ही पार्ट हो गया। और इस सबको करके फिर में उसको हिसाब से अपना जो जितना बॉडी वेट है उसको हम 1 ग्राम के रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से लेंगे। 70 किलो वजन है तो 700 ग्राम्स आप पपाया, गुआवा, चीकू, किन्नू, जिसकी ऐसी अवेलेबिलिटी हो उससे पहले करें, काढ़ा पीने के बाद। और उसके बाद आपने जो है, जैसे आजकल तो बहुत ज्यादा 70 केजी में 70 ग्राम की बात कर रहे हैं, वो प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, वो अलग है। हम तो पहले इस पर लेके चलेंगे। पहले अपने ड्राई फ्रूट्स का इम्पैक्ट रखिए, उनमें नेचुरल मिनरल्स मिल रहे हैं, नेचुरल उसमें विटामिन मिल रही है, कोई सिंथेसिस वाली बात नहीं है। बड़ा अच्छे से डाइजेशन भी इम्प्रूव रहता है। और पपाया होने जाते पेट भी साफ रहेगा, नहीं तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। डॉक्टर कंसल्टेशन ऑनलाइन थे तो थे, नहीं तो कहीं भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही, कहीं कुछ हो रही है, तो ये सेटअप रहा। इसके अलावा सैलेड के बात आती है कि जितना वजन है उसका फिर हाफ ग्राम के हिसाब से, यानी कि 70 किलो के वेट लेके चले 350 ग्राम में आपने खीरा है, गाजर है, मूली है, या दूसरे ये बीटरूट है, चुकंदर है, जो भी कुछ मना जो हो सका, जहां जो भी उपलब्ध था वो कर लिया। इसके बाद बाकी जो चीजें बचती उसमें अपने वेट के हिसाब से आपने अर्धसौहित्र की भावना के साथ में हमने अपने स्टमक को रोटी दाल सब्जी से रखा। और यही चीज हमने, जैसा कि किंचित ऊनम समर्शनीयात की बात आती है कि रात्रिकालीन भोजन जो रहेगा वो थोड़ा हल्का रहेगा, गरिष्ठ सुपाच्यो। और दूध में हल्दी वाला दूध, गोल्डन मिल्क, जिसको वर्ल्ड वाइड फेम मिल गई है कि हमने टर्मरिक का बहुत बड़ा उपयोग है। आप जान नहीं है टर्मरिक से हमें स्टेरॉइड्स की बात है, लेकिन ये भी सिंथेटिक नहीं है, हमारा नेचुरल सोर्स से मिलता है। तो सिंथेटिक ये दूध में हल्दी डाल के और उसको प्रोसेस हो जाना चाहिए। ये नहीं चलते में डाल के पी लिया। गरम दूध लिया, इट में बी 200 ml, 250 ml, 400 ml एज पर द मीन्स कैपेसिटी। और उसमें आपने कम से कम 2-2.5 ग्राम क्वार्टर चम्मच से लेके आपने 2 ग्राम 3 ग्राम तक डाल दिया, अच्छे से स्टीयर कर दिया। और उसके बाद आपने 10 ग्राम का च्यवनप्राश ले लिया। इसमें भी थोड़ा देखिए आयुर्वेद के सिद्धांतों से चले तो थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। हमारे यहाँ गर्मियों में बात नहीं कही थी च्यवनप्राश सेवन करने के लिए, उसमें जरूर था कि अगर च्यवनप्राश सेवन करना है तो गर्मियों में, स्पेशली मई जून में, जो कि गर्मी के क्षेत्र है, माने बिल्कुल ही जहाँ पर अच्छी तेज गर्मी पड़े, लू चलती है, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यूपी का इलाका उधर का हो गया, तो तब उसमें प्रवाल भस्म मिला के लेंगे तो हमारी जो शीतवीर्यता है प्रवाल भस्म की, वो इससे ऐड होके दिक्कत नहीं करेगी। अन्यथा ये जो टॉनिक है, ये जो सारे परिवार की तंदुरुस्ती की बात करते थे, तो उसके लिए 15 अक्टूबर से लेके और 15 फरवरी, लेट टू लेट फरवरी एंड का रूटीन हुआ करता था। क्योंकि ये मॉइस्चर बेस्ड वाली चीज थी, तो इसलिए हमने इसका स्पेन बढ़ा लिया। कुछ लोगों ने इसको मैंने सुबह 10 ग्राम सुबह खाने की बात कही। मेरा तो ये था कि इसका सहपान जो है, अनुपान जो है, वो मिल्क होना चाहिए। फिर ये अपनी सुविधा के हिसाब से सो कर सकते हैं। तो ये हमने चीजें देखी। ये तो हुई एक हमारे आयुर्वेद से जुड़े होने के नाते हमारे पास क्या टूल्स हैं। हमारे पास दिनचर्या का टूल है, हमारे पास ऋतुचर्या का टूल है, और इस सब के साथ हमारे पास तेरे उपस्तंभ के जो टूल्स हैं। इन टूल्स की सहायता से स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें, विशेष जोर इसलिए दे रहे हैं कि अल्टीमेटली सबसे पहले हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो हमारी कोशिश है कि हम को स्पॉज न होने दें और धीरे धीरे अनुलोम विलोम और कुछ ना कर सके तो समान गति प्राणायाम जिसको बोलते हैं, एक नॉस्ट्रिल सांस लेना है, अपोजिट नॉस्ट्रिल सांस निकालना। ये काम ब्रेक ले करें, 5 मिनट कर लिया, छोड़ दिया, फिर अपना कर लिया, फिर थोड़ा सा भस्त्रिका कर लिया, इससे अगर
इनकेस जिन लोगों की डाइजेशन थोड़ा सा कंप्लीट अच्छा नहीं होता है, उनके लिए क्या है कि वो इसके साथ साथ कपालभाति भी करें। तो उसमें ये है कि ये मूवमेंट हमारे एब्डोमिनल मूवमेंट रहेंगे, तो उससे इंटेस्टाइनल जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो वो अच्छे एंजाइम्स भी रिलीज करेगा और डाइजेशन भी प्रॉपर होगा, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होगा, तो फिर कॉन्स्टिपेशन वाली बात भी नहीं आएगी। क्योंकि कंठगत समस्या आई है, इस चीज को यहाँ पे जोड़ना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है, इसलिए उज्जाई अवश्य करें। अगर डिस्निया ना बने, अगर सांस ना फूले, तो ये करके जो करेंगे, तो उज्जाई करने से होगा कि कंठ से सांस को खींचे आराम से और नॉस्ट्रल्स को निकालें। तो इससे क्या है, जो हमारा थ्रोट का जो एरिया है, वहां पर जो हमारा फिजिकल हम एक्सरसाइज कर सकेंगे, यानी थ्रोट को इन्वॉल्व कर सकेंगे, वो हमारे लिए डिकॉक्शन लेने से और स्टीम लेने से भी ज्यादा प्रैक्टिकली होगा। तो एक तरफ तो क्लासिकल चीज हो गई, हमारा टेक्सचुअल पार्ट होगा कि हमने थ्योरी में स्वस्थ व्यक्ति के अंतर्गत दिनचर्या और दिनचर्या क्या पढ़ी थी, और आज प्रेजेंट सिनेरियो में इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जो हम इन प्रैक्टिस लाना चाहेंगे। आप सब लोग डॉक्टर्स हैं, कि हम देख रहे हैं कि रंजन खुद प्रभावित हो चुके थे, कोरोना से पॉजिटिव हो गए थे, फिर कैसे ठीक हुए। प्रतिभा के साथ वैसे ही रहा, दूसरी दीप्ति शर्मा लड़की गुप्ता जो है लखनऊ, वो भी कई बार लोग कांटेक्ट में आए रहे, लेकिन अपनी अच्छी इम्यूनिटी के साथ वो लड़े हैं। बहुत सारे लोग, हमारा वो लड़का है, क्या है वो, प्रशांत दूसरा वाला अग्रवाल शायद, गोयल, तो ये सब लोग, काफी लोग इसमें कांटेक्ट में रहे हैं। और सब कुछ क्या था, हमने थ्रोट पे ध्यान दिया, हमने लंग्स पे ध्यान दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम कैसे अच्छे से एक्टिव कर सकें और फ्लगम न जमा होने दें। मेन चीज थी कफ को, जो हमारा कफ का स्थान है, ऊर्जत्व का स्थान है, वो विशेष रूप से कफ का स्थान है, तो अनबायस्ड है, उसकी जो पैथोलॉजिकल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो स्टिक ही हो जाएगा, जमेगा, तो वहां पर वो ओरल कैविटी में पाया जाने वाले एंटीटाइड्स के जो हमारे जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरियाज हैं, वो कभी भी स्टिग्नेट होके वो अगर पैथोलॉजिकल रिएक्शन देंगे, तो वहां पर सोर थ्रोट होगा, दिक्कतें पड़ेंगी, वहां पर निगलने में दिक्कत होगी। यही वजह है कि इस एरिया के वजह से ही जो स्मेल लॉस और टेस्ट लॉस की बात आती है, वो भी इसी वजह से होती है कि हमारा जो फ्लेगम है, उसको हम अगर इन्फेक्टेड होने की नौबत आती है, उससे पहले ही उसको हम निकाल बाहर करें। तो ये विशेष रूप से इस चीज को लेके हमें चलना होगा। तो थ्रोट के लिए जहाँ गंडूश कवल धारण की बात रखी जाएगी, वहीं उज्जाई भी अपना साथ ने अच्छे से काम किया है। और साथ में डाइट की हमने बात बताई थी, चर्चा कर ली। अब आप ये देखिए कि हमने किया क्या। एक बहुत चीजें इसमें हम जब दिमाग में जोर डाल रहे, तो हम सोच रहे थे कि हमारी जो दिनचर्या का रोल था, वो कैसे बिना मतलब अननोइंगली, अनअवेयरली हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे सारे डॉक्टर्स को अनअवेयरली कैसे इसको प्रैक्टाइज किया है, इन प्रैक्टिस है। वो देखिए, एक ही श्लोक अपने चरक में जब हम बात करते हैं कि नरोहिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विषय असक्ता दाता समा सत्यपरा क्षमावान आप्तोपसेवी सभवत्य रोगा। तो जहां पर हमने बात की है कि एक बहुत सी जगह की हितकर आहार की बात हमने कर ली, हितकर बिहार की बात कर ली, ऊपर चंगमण कर लिया, आपने मूवमेंट कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, भ्रमण कर लिया, घूम लिया, और अच्छे से अपने बॉडी के सर्कुलेशन को डेली बेसिस पे, यानी कि आज कर लिया परसों भूल गए, डेली बेसिस पे इट इज टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन, सही बात है, डेली रूटीन कहा गया है, इट इज टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन डेली बेसिस, तभी उसके लाभ मिल सकेंगे। तो ये तो बात हमारी हो गई कि हमने ये कर लिया। पहले लाइन देते हैं कि हितकर आहार विहार करने वाले व्यक्ति हैं, और नरो हिताहार विहार से समीक्षकारी, एंड व्हाट इज टू बी डन, what is our capacity, the body is allowing us to do this much strenuous work or not, that depend, you must be careful, you should be analytical before performing any of the activities। आप अपनी एक्टिविटीज उतनी ही करें जितनी आपकी शरीर की क्षमता है, उतना ही वजन करें जितने की आपको पचाने की क्षमता है। तो ये दिनचर्या के विशेष रूप से आप बीमार नहीं पड़ेंगे। समीक्षा विषय असक्ता है, एंड वन शुड नॉट बी आफ्टर द लस्ट, हम बहुत ज्यादा विषयों में आ सकते हैं जी, क्योंकि इस समय तो स्थिति यही रही कि हमने अच्छे से ब्रह्मचर्य पालन किया, हमने अच्छे से उपस्तंभ का पालन किया, तभी हमें साउंड स्लीप भी आई और हम निश्चिंत रहे। और हमारी जो पैनिक की सिचुएशन शुरू होनी थी, हर कोई हैवक हो रहा था कि ये पता नहीं क्या होगा, कोई बचेगा नहीं बचेगा, अरे भाई सब मर जाए, हम अकेले बच गए तो भी तो बेकार है। समस्या तो ये कि परेशानी में है, तो क्यों ना हम सबका एक दूसरे के साथ देके चले। तो यहाँ से जो सेकंड लाइन है, ऊपर की जो लाइन आई ना, ये लाइन तो आई हमारी फिजिकल हेल्थ के बारे में देखा जाए, लेकिन जो सेकंड लाइन है, ये इसको चरितार्थ किया है हमारे स्पेशली डॉक्टर्स से। हम स्पेशली उनको थैंक्स करना चाहेंगे जब बात आती है कि दाता समा सत्य पराचमा, चैरिटी ऐसे एक इमोडिमेंट बन गया है हमारा। डॉक्टर भी माने एवरी सिटीजन, सबके मन में ये बात है कि ये चीजें जो हमारे पास रखी है सामने, हमारे अपने इस्तेमाल में नहीं आ रही, हमारे खर्चे खत्म हो गए, हमारा
चलना फिरना बंद हो गया, ट्रेनें बंद हो गई, हवाई यात्राएं बंद हो गई, तो क्या करेंगे? जो सामने आया उसको दिया। इसमें 2-3 उदाहरण तो ऐसे, इनकी वीडियोस भी आपने देखा भी होगा कि हमारे आचार्य रजनीश जी यहाँ पर खाना बांटने लगे, सबके सहयोग से। बहुत सारे एनजीओ ने काम किया, तो दूध के पैकेट भी बांटते थे, बिस्किट के पैकेट बांटते थे। तो एक बच्चे उसको मिल गया और बेचारा लिए खड़ा ही था, इतने में एक दूसरी औरत, इसकी गोद में बच्चा था, और उनके आचार्य रजनीश जी के पास में खत्म हो गया था वो सामान। तो उस बच्चे ने अपना वाला पैकेट उस गोद वाले बच्चे के लिए दे दिया। मतलब एक दान की, चैरिटी की सीमा वो बाकायदा अच्छा सा वायरल हुआ ये वाला, कि वो किस कदर दे के भी उसने दिखाया कि हाँ भाई, हर एक में भावना अंदर से पैदा आ गई। हर किसी ने डोनेट किया, ड्राई सामान दिया, और ये बना बनाया खाजा लोन 100-100 200 खाने दिए, अन्नदान वाला कार्यक्रम चलाया। ऐसा कुछ हुआ कि ये एक रूटीन बन गई, एक हमारे दैनिक जीवन का एक अंग बन गया था। और इतना ही नहीं, इस सबसे ऊपर क्या किया, आपको अच्छे से याद होगा, हम नाम प्लेस नहीं बता पा रहे हैं, वो डॉक्टर जो खुद कोविड से पॉजिटिव था और बाकायदा आईसीयू में दाखिल था, उसको ऑक्सीजन लगी हुई थी, और उसी ने अपने वार्ड देखा कि एक और उससे सीरियस कोई कॉमन पेशेंट आया था, और उसने खुद उठ के अपनी ऑक्सीजन की डिवाइस जो हटा के और उस पेशेंट को दे दी। इससे ज्यादा वर्ल्ड में कोई डोनेटरी चैरिटी क्या होगी? उसने उसको डिवाइस दी कि ही नीड्स डायरली इंस्टेड ऑफ माई स्टेटस, ये किया। इस सब के अलावा दाता हो गया, समा, मतलब हम सुख दुख सामने दिखाई पड़ता है तो आदमी समझ, तुम योग की बात आ गई। लेकिन उससे बड़ी चीज क्या हुई कि क्षमावान। आप अंदाजा लगाइए, डॉक्टर तो वर्क कर रहा है, एक चीज है प्रैक्टिकली हमने इसको पढ़ाना, पठन पाठन तो बहुत दूर बात है, चिंतन और मनन की बात आती है। और तब वहां हमने पाया कि ऐसी स्थिति भी आई कि हमारे डॉक्टर्स पर इन्फेक्टेड पेशेंट ने थूक भी दिया, फिर भी डॉक्टर विचलित नहीं हुए और अपना काम करते रहे। अर्थात उन्होंने क्षमावान होने का अपना जो बिल्ट इन कैरेक्टरिस्टिक थी, उसको प्रैक्टिकली दिखाया कि किस तरीके से लोग आते थे, थूक भी दिए, अश्लील हरकतें की, मैंने गाली गलौज किया, कंट्रोल नहीं किया, हर तरीके से किया। लेकिन ऑन ड्यूटी डॉक्टर विच आर डिजाइंड एज द फ्रंट लाइन वॉरियर्स, चाहे वह सुपर क्लास के लोग रहे, सफाई कर्मी रहे, स्वच्छता के विशेष ध्यान रखा कि जो कि मस्ट था, डॉक्टर से, पुलिस वाले थे, सिविलियन से, सभी ने एजेंसी किया। तो ऐसे जब स्थिति की, तब जाके भारत आज वहां पर है जहां पर हर किसी ने उसको लोहा मान लिया कि हम न तो चंद्रयान भेजने में पीछे हैं, और ना इतना बड़ा जो वर्ल्ड वाइड क्राइसिस आई है, इसको भी हम कंट्रोल करने में सक्षम हो पाए। और हम समझते हैं कि क्या भूमिका आईसीएमआर की रही, क्या भूमिका एसआईआई की रही, या पुणे वालों की रही, हैदराबाद वालों की उन्होंने रखा किया, इस सब के ऊपर आज स्थिति ये बन चुकी है कि वो समय दूर नहीं है। और मेरा पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में भारत में कोविड-19 को कैसे जीता, कैसे मीट आउट किया, इस क्राइसिस को कैसे फेस किया, इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल साइंसेस, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, विभिन्न डिपार्टमेंट भारत के विश्वविद्यालयों में ही नहीं, विश्व के विश्वविद्यालयों में इस पर स्टडीज होंगी, शोध कार्य होंगे, पीएचडी होंगी। हॉलीवुड और बॉलीवुड वाले भले ही लॉकडाउन पर या कोविड-19 पे पिक्चरें या फिल्में बना लें, लेकिन जो एकेडमिक क्लास के लोग हैं, हम विश्वास कर सकते हैं इस पर स्टडीज होंगी, इस पर रिसर्च होंगे, और लबो लॉब में लास्ट में यही निकलेगा कि भारत में चली आ रही आयुर्वेद की सनातन परंपरा, जिसके अंतर्गत स्वस्थव्रत है, और स्वस्थव्रत के अंतर्गत हम दिनचर्या, संध्याचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, सद्वृत्त पालन, वेग विधारण और आहार निद्रा ब्रह्मचर्य जैसे मूलभूत जीवन के सिद्धांतों को के पक्षधर हैं। उनके बदौलत और आयुर्वेद में वर्णित विभिन्न प्रकार की औषधियां, जो कि विशेष रूप से इनका कि हमारा जो वन संपदा और वन्य संपदा से हम पूर्ण रूप से लाभान्वित रहते हैं अपने देश में, उन सब का हम लोगों ने पालन किया, उसका लाभ लिया, और एक इतने बड़े विश्वव्यापी चैलेंज को इस रूप में स्वीकार किया कि इकोनॉमी भी बचा ले गए, पॉलिटिक्स भी बचा ले गए, कोई डाउनफॉल लेवल हो गया तो पता नहीं क्या क्या हुआ, और सरकारें बदल गई, और बहुत कुछ हुआ। और सबसे बड़ी चीज है डेथ टोल, परसेंटेज इन रेफरेंस टू द पॉपुलेशन। इस पर तो विश्व रिकॉर्ड ही बना दिया कि आज की तारीख में हम देखें
पूरे वर्ल्ड वाइड अगर 20 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं, तो आप देखिए उसमें हम मुश्किल से हम 130 करोड़ में 1 करोड़ भी नहीं हो पाए, 1-1.5 करोड़ मतलब जो भी तो हुआ है। लेकिन जहां तक डेथ का सवाल है कि रिकवरी रेट को देखा जाए तो वो सबको क्या कितने हजार रुपए उन लोगों के अकाउंट में डाले गए जो बेचारे निरीह थे, जो नीडी थे। हम सब लोगों ने अपनी मेड सर्वेंट छुड़वाए और उनकी दिनचर्या का ख्याल रखा। बड़ी-बड़ी एनजीओ से कहा कि इनको खाना पहुंचे, 5 खाने इनके पहुंचते रहे, सुबह शाम पहुंचते रहे। रॉ मटेरियल दुकानों से उठवा दिया और एडवांस उनका गैस सिलेंडर भरवा दिया, एडवांस सैलरी दे दी। क्या नहीं किया, घर पर बैठे लोगों ने जो ऑनलाइन बिजनेस की, तो इसमें हर व्यक्ति की दिनचर्या का आपने देखा प्रभाव है, चाहे वो एमएनसी में वर्क करने वाले लोग हों या वो स्वयं जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं। चीजें चाहे वो स्कूल वाले टीचरों को तनख्वाह चाहिए, बच्चों से फीस नहीं लेनी है। देखिए बड़ा एक सिस्टम को देखिए कि अब जिसने कमाई नहीं की वो बेचारा जो बार्बर की सैलून था, जो कॉबलर था, उन सबके तो खत्म ही हुआ। जो ऑटो रिक्शा वाले थे वो सवारी नहीं, उन्हें चलाना नहीं, तो वो तो बिल्कुल ही हैंड टू माउथ किया, बिल्कुल खत्म ही हो गए। तो उस सब के बीच में उनकी भी एक दिनचर्या थी। तो आयुर्वेद में आयुर्वेद में जो चैरिटी का कॉन्सेप्ट था, जो हमारे इंडियनिज्म में, मैं इसको हिंदुइज्म में नहीं कहूंगा, भारतीयता में जो एक कॉन्सेप्ट है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, सर्वभवन सुखना की भावना के समझ रहे हैं। हम कहते हैं सर्वभूत हिते रतः। संत समाज जो है, व्यक्ति जो है, मनुष्य क्या है, जो दूसरे जो भूत जो प्राणी मात्र हैं उनके हित के लिए निरंतर चिंतन करे। सर्वभूत हिते रतः, एक तो ये कॉन्सेप्ट भारत का रहा है। दूसरे वसुधैव कुटुंबकम, द यूनिवर्स, द वर्ल्ड इज अवर पैरामीटर एज फार द फैमिली इज कंसर्न। वसुधैव कुटुंबकम, हमारे कुटुंब की जो परिभाषा है वो पूरी संपूर्ण वसुधा को लेके चले। तो उसमें आप देख लीजिए, चाहे वो हमारे जो वंदे मातरम कॉन्सेप्ट लेके जाइए, विदेश में फंसे हुए नागरिकों को जगह जगह वापस लाए गए, भारत में लाए गए, भारत वालों ने दूसरे देशों को जहां जहां अपील हुई पहुंचे। हम लोगों ने इस तरीके से बहुत सारे उस काम को किया। वैक्सीन मांगने पे वैक्सीन दी जा रही है, पीपीई किट मांगने पीपीई किट दी गई है। हमारी दिनचर्या में आयुर्वेद के निहित सिद्धांत कि हम एक दूसरे के प्रति हेल्पफुल हों, अपने स्वास्थ्य का भी चिंतन करें, अपने संपर्क में आने वाले व्यक्ति के भी स्वास्थ्य का चिंतन करें, और यदि कोई रोगग्रस्त हो जाता है तो उसकी यथा निर्दिष्ट चिकित्सा भी करें, तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की तो रक्षा हो ही सकेगी। व्यक्ति की रक्षा होगी, परिवार की रक्षा होगी, मोहल्ले की रक्षा होगी, जिले की होगी, प्रदेश की होगी, देश की होगी, और इसी से अच्छी भावना के साथ में विश्व की रक्षा होगी। तो ये बहुत बड़ी चीज होगी। हमारा भारत के क्रम में ये बहुत बड़ा हम समझते हैं योगदान है कि हमारे इस पूरे व्यवस्था पर एक आकलन किया जाए, आकलन किया जाएगा, शोध कार्य किए जाएंगे, इस पर स्टडीज होंगी कि कैसे भारत इतनी बड़ी विभीषिका, जो कि विश्व स्तरीय विभीषिका थी, इसमें मिनिमम खर्चे पर निपट गया, मिनिमम जनहानि पर निपट गया, मिनिमम धनहानि पर निपटा और श्रेष्ठता के साथ निपटा। और उस सबसे भी बड़ी चीज 16 दिसंबर 20 से पहले हम कहीं पर नहीं थे, लेकिन जो प्रयास किया गया 16 दिसंबर जो पहले चरण में विश्व के हमारे देश में 2 वैक्सीन की शुरुआत की गई, ये अपने में अद्भुत उदाहरण है। इसके लिए शब्द तो है ही नहीं, मतलब बड़े सिंपल वे में कहते हैं प्राउड टू बी इंडियन। इसमें एक ही बात समझ आती है कि बहुत ही विनम्रता संग कहने में खुशी होती है कि हम गर्व कर सकते हैं कि हम भारतीय हैं, और भारत का इतना बड़ा आउटपुट एक स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा ही तो यह वैक्सीन बनी होगी। इसलिए स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जो दिनचर्या के मानदंड है, जो सिद्धांत है, जो पैरामीटर है, वो वर्तमान के सिनेरियो में भारत से बेहतर मैं आप सभी लोग रात दिन सुन ही रहे हैं, देख रहे हैं, कोई आंकड़े ऐसे नहीं मिलते हैं कि हमारे देश से बेहतर किसी देश की दिनचर्या रही होगी, या उन्होंने ऋतु विशेष में, महीने विशेष को ज्यादा अच्छा काम हमसे लेके कर गए होंगे। कोई आंकड़े हमारे आंकड़े में के सामने उनके आंकड़े कहीं दूर दूर तक टिकते ही नहीं है। ये अलग बात है कि वो कुछ कूटनीति के नाते डिक्लेयर करें या ना डिक्लेयर करें, छुपाएं, वो अलग बात है। लेकिन भारत ने जो कुछ करके दिखाया है वो स्तुत्य है, हमारे लिए स्तुत्य है, विश्व के लिए स्तुत्य है। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि आयुर्वेद से जुड़े हुए किसी भी अधिकारी, पदाधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, हमारा फार्मासिस्ट, हमारे चतुर्श्रेणी कर्मचारी, हमारे सभी सहयोगियों का दायित्व और अधिक बढ़ गया है। कितने हमारे फाइनेंस कमिश्नर हमारे कानपुर के हैं, और लोग भी शायद सुन भी रहे होंगे, और कितने कितने लोग हुए हैं जिन्होंने ढूंढ के, हमारे ब्रजेश कटियार साहब कानपुर में थे, कितने कितने लोग हैं, धनंजय का नाम भी लेना यहाँ पर बहुत समीचीन रहेगा, कितने लोगों ने शासन में, माने उत्तराखंड में तो धनंजय के हमारे विधानसभा के जो
अध्यक्ष जी हैं हमारे प्रेमचंद अग्रवाल साहब, सभी लोग इस कदर इन्वॉल्व होकर चीजें मांगी हैं कि साहब काढ़ा चाहिए, मुझे सनसनी बड़ी चाहिए, या हमें जो है वो गिलोय बड़ी चाहिए, और काढ़ा तो चाहिए। मतलब कुल मिला के आयुर्वेद का अपर हैंड रहा है, और ये बड़े गौरव की बात है। लेकिन इसमें आप सब लोगों के जो कमिटमेंट है, वो उसको भी कहीं भी हल्का करके नहीं आकलन किया जा सकता है। तो आपने हमें ये मौका दिया कि हम अपने संजोए हुए शब्दों को आपके साथ में शेयर करें। ये कोई आपकी तारीफ की बात नहीं, ये आयुर्वेद की तारीफ की बात है, और आपका आयुर्वेद के प्रति रुझान, आपका अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा, इस सब का ये इस बात का द्योतक है कि आज हम गर्व के साथ में आयुर्वेद की प्रतिष्ठा को, भारत की प्रतिष्ठा को के साथ में जोड़ के विश्व स्तर पर स्थापित करने में संपन्न और समर्थवान हो पाए। और बताइए, रुके या आगे कंटिन्यू करें? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। Thank you so much, sir, for taking out time and giving us insights on Swasthvit and yoga in present scenario. It was very informative presentation, and hope all of you found this webinar informative. So, Dr. Ranjan, आप कुछ कहना चाहेंगे? And Dr. Pratima also. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अग्निहोत्री सर। निश्चित रूप से अभी आपके द्वारा जैसे बताया गया कि कितना भी जो भी हमारी स्वस्थ भारत में बड़े दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, इसका कितना भी वायोलेशन हुआ लोग करें, लेकिन फिर भी ओवरऑल वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हम इसका पालन तो करते ही हैं, ऋतुचर्या और दिनचर्या का। और यही कारण रहा कि इस वैश्विक महामारी में और इतनी ज्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी हमारी जो मॉर्टेलिटी रेट था वो बहुत कम था, और रिकवरी रेट हमारा था बहुत ज्यादा था, और जैसी अपेक्षा की जा रही थी कि यहाँ की स्थिति बड़ा भयावह होगी, वैसी नहीं रही। निश्चित रूप से हमारी केंद्रीय सरकार का ये बहुत अच्छा, उन्होंने इसको बड़ी अच्छी तरीके से प्लानिंग के साथ इसको मैनेज किया। मेरा विश्वास है कि अगर व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा हो, अगर व्यक्ति डिस्कनेक्ट हो गया था। जी, अगर व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा हो, अगर व्यक्ति के अंदर विषमताओं से लड़ने की क्षमता हो, और उसके अंदर अपना पुरुषार्थ हो, तो निश्चित रूप से ऐसी तमाम तरीके की महामारियां जो हैं, महाबीमारियां जो हैं, उनसे लोहा लिया जा सकता है। मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही है कि मैंने कभी लिखा था कि घर गृहस्थी में भी संन्यास लिए फिरता हूँ, घर गृहस्थी में भी संन्यास लिए फिरता हूँ, और मरुथल में भी मधुमास लिए फिरता हूँ। आदमी चाहे तो क्या पा नहीं सकता है विशद, मैं तो मन में यही विश्वास लिए फिरता हूँ। हर देशवासी की चाहत थी कि इस कोरोना से हम बहुत जल्दी निजात पा लेंगे, और अब मुझे लगता है ये जनवरी हमारी बीत चुकी है, फरवरी शुरू हो गई है, फरवरी 2021, और इससे हम बहुत जल्दी काफी कुछ निजात पा भी चुके हैं, और जो शेष बची हुई है उससे भी हम लोग इससे छुटकारा पा लेंगे। मैं चाहता हूँ अब डॉक्टर प्रतिमा अपने मैं एक शब्द और जोड़ना, मैं अगर आप अलाउ करें तो एक शब्द और जोड़ना था मुझे। जी हेलो, बिल्कुल। जी मैं ये कह रहा था जी, वैसे तो आप सब लोग चिकित्सा अधिकारी हैं ही हैं, चिकित्सा कार्य कर ही रहे हैं, हम ही सब लोग देखते ही हैं, लेकिन पिछले अपने कई सारे एड्रेस में हमने इसको बोला था, इसलिए नहीं बोला। अल्मा आटा डिक्लेरेशन में बात रखी थी 78 में कि हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD। तो ये हेल्थ फॉर ऑल मैंने सबके लिए स्वास्थ्य सन 2000 तक, आज 20 साल तो और ऊपर से हो गए हैं। लेकिन मेरी इस कोरोना के संबंध में एक बहुत बड़ी चीज मैंने सामने रखी, वो ये कि देखिए, हम लोग कहने को PHC कहते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहते हैं, या चिकित्सालय का नाम क्या होता है? चिकित्सालय, आतुरालय, रुग्णालय। जहाँ चिकित्सा दी जाती है वो चिकित्सालय है, जहाँ आतुर रहते हैं वो आतुरालय है, और जहाँ पे रोगी रहते हैं रुग्णालय है। लेकिन जहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर हम PHC बोलते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो वो लिखने को लिखा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। आप बताइए क्या वहां आप स्वास्थ्य देते हैं? आप तो फर्स्ट एड देते हैं, दवाई देते हैं, इलाज देते हैं, चिकित्सा देते हैं। तो मेरा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था कि हमें, और ये सिद्ध हो गया कोरोना में, कि हमें अपने घर को घर ही नहीं स्वास्थ्यालय बनाना है। मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया तो मुझे अभी याद आया कि क्यों ना हम घर में जो हम आइसोलेट किए, जो हमने घर में क्वारंटाइन किया,
तो कहने लगे होम क्वारंटाइन। वो होम क्वारंटाइन नहीं, देखिए हम चिकित्सालय में चिकित्सा लेने जाते हैं और लोग कहते हैं चिकित्सालय में गए स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। नहीं, स्वास्थ्य लाभ तो परिवार में परिजनों के साथ में, बाल बच्चों के साथ में स्वास्थ्य लाभ होता है। चिकित्सालय में तो चिकित्सा प्राप्त की जाती है। तो इसलिए हमको ना अपने घरों को स्वास्थ्यालय बनाएं, यहाँ पर हम प्राणायाम करें, यहाँ पे एक्सरसाइज करें, यहाँ पे स्वस्थ खाना खाएं और परिजनों के साथ बने, अपने मानव शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करें। तो हमारे घर ही नहीं है, ये स्वास्थ्यालय है। चिकित्सालय, आतुरालय, रुग्णालय तो केवल चिकित्सा प्राप्त करने के स्थान है। धन्यवाद जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर प्रतिमा, ये फुल स्क्रीन नहीं आ गया क्या? डॉक्टर प्रतिमा अनम्यूट करो। हाँ। सर प्रणाम। आपको हमेशा सुनना हम सभी के लिए बहुत गर्व और सौभाग्य की बात रहती है। हम तो आज आपको सुना तो हम तो हमारी घड़ी घूम के वहीं पहुंच गए 96 में। आपसे और जो सर आपने डिसिप्लिन दिखाया, वहाँ पे सिखाया हम लोगों को, आज हम उसी के कारण जो है आज हम जिस पद पे बैठे हैं, चिकित्सक के पद पे, तो सभी के साथ न्याय कर पाते हैं, मरीजों के साथ न्याय कर पाते हैं। कैसे हमको चिकित्सा करनी है, क्या करना है, सर आपका ध्यान हमेशा रहता है जब भी हम लोग जो रहते हैं इसमें। और सर जैसा आपने स्वास्थ्य के बारे में बताया, अब देखिए इस पैंडेमिक में वही सब कुछ वापस लौट गया है। जैसे बार बार हाथ धोना, किस तरीके से धोना, गंडूस धारण करना और वेग विधारण जो भी सब कुछ है सर, वो लौट के आया। और आयुर्वेद के प्रति इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हो गई, काढ़े को लेके, सस्वनिवटी को लेके, गिलोय के लेके, आइसोलेशन को लेके। तो आज यही सब कुछ है कि जैसे हम लोगों ने आयुर्वेद के प्रति आज इस मंच को शुरुआत की है और जो है अब आयुर्वेद का प्रचार प्रसार जो हम कर रहे हैं वो सब है ही है। और आपकी देन, आपका स्नेह और आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर रहे और बार बार मौका आए कि हम लोग आपको ऐसे सुन सके सर। सब बहुत बहुत आभार आपका। Thank you so much, sir. We always need your blessings. So with this, we conclude our session today. Thank you again. Please send and have a great evening ahead.